Hello students, I am going to start exercise 1.2. Now see the question number 1. See the question number 1. In this exercise there is given types of sets. There are 4 types of sets. Singleton set, second one empty set or null set, third one finite set, and fourth one infinite set, and last one equal sets. What is the singleton set? A set having one and only one element, then it is said to be singleton set. If set having no element, then it is called empty set or null set. It is denoted by phi. If phi है, इस phi से दिखाते हैं सब this letter, और curly bracket ऐसा दिखाते हैं हम लोग, ठीक है. थर्ड टाइप फाइनाइट सेट. फाइनाइट सेट क्या होता है? काउंटेबल, मतलब जिस सेट्स में एलिमेंट काउंट कर सकते हो उसको हम लोग फाइनाइट सेट बोलते हैं. और लास्ट वन इनफाइनाइट सेट. इनफाइनाइट सेट मतलब क्या होता है? जिसके अंदर अनलिमिटेड एलिमेंट होगा, जिसको हम लोग काउंट नहीं कर सकते, अनकाउंटेबल, तो क्या होगा? इनफाइनाइट सेट्स. देन इक्वल सेट्स. इफ टू सेट्स हैविंग सेम एलिमेंट, then they are equal sets. Now question number 1, 1.2 question number 1. What is given there? A x such that, क्या पढ़ते हैं इसको? x such that 3x minus 1 is equal to 0. ये लाइन को such that पढ़ने का. क्या पढ़ने का? such that x such that 3x minus 1 is equal to 2. B में दिया हुआ है x such that x is a natural number but x is neither prime nor composite. And third is given x such that x belongs to n, x is less than 2. मतलब तीनों क्वेश्चन मैंने यहाँ रीड कर दिया आपका. अब हाउ टू सॉल्व. फर्स्ट ए, बराबर, इसके अंदर एलिमेंट, इसको चेंज करेंगे हम लोग सही फॉर्म में. x का वैल्यू फाइंड करेंगे. हाउ टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x? 3x minus 1 is equal to 2. 3x ऐसे रहेगा, -1 ट्रांसफर होगा राइट में तो प्लस हो जाएगा. 3x इक्वल टू 2 प्लस 1, 3x इक्वल टू 3, x इक्वल टू 3/3, 3 1 जा 3, x इक्वल टू 1, राइट. मतलब कितना आ गया x का वैल्यू? 1. देयरफॉर सेट A हैविंग ओनली वन एलिमेंट 1. दिस इज फर्स्ट. नाउ सेकेंड, B x such that x is the natural number but x is neither prime nor composite, right. कौन सा नंबर है जो प्राइम भी नहीं है, कंपोजिट भी नहीं है? बोलो. विच इज 1. विच नंबर इज नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट? 1. 5th स्टैंडर्ड, 6th स्टैंडर्ड, 7th, 8th से पढ़ते हैं आप लोग. 1 प्राइम भी नहीं है और कंपोजिट भी नहीं है. वो कौन सा नंबर है? 1. सी में क्या दिया? x बिलोंग्स टू n. ये कौन सा साइन है? x बिलोंग्स टू n. x इज लेस देन 2. मतलब नेचुरल नंबर है लेकिन 2 से छोटा है. तो विच नंबर इज नेचुरल एंड लेस देन 2? विच इज 1. c इज इक्वल टू 1. थर्ड, मतलब फर्स्ट सेट A में 1 एलिमेंट, B में 1 एलिमेंट, C में 1 एलिमेंट, तीनों में 1 एलिमेंट है और तीनों एलिमेंट सेम है. तो क्या हो गया? फ्रॉम फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड वी गेट A, B, C are equal sets. Therefore A is equal to B is equal to C. Understood? It's very simple questions. Now second one. What is the second question? Second question is given. Decide whether set A and B are equal sets. Give reason for your answers, right. What is given there? A
A is given even prime number, even prime number, and B is given x such that x 7x minus 1 is equal to 13, is equal to 13, right? सॉल्यूशन, इसमें भी क्या बताना है, इक्वल सेट है या नहीं। अब इक्वल सेट के लिए दोनों को सॉल्व करना पड़ेगा अपने को। तो फर्स्ट वन ए, व्हाट इज द इवन प्राइम नंबर, विच इज द इवन प्राइम नंबर, मैंने पहले ही आपको बताया, ओनली वन नंबर इज इवन एज वेल एज प्राइम, विच इज 2, विच नंबर 2, 2 इवन नंबर भी है और क्या है, प्राइम नंबर भी है। ये हो गया फर्स्ट, क्या हो गया फर्स्ट। सेकेंड वन बी, x such that 7x minus 1 is equal to 13, ऐसा दिया हुआ, इसको सॉल्व करना पड़ेगा। 7x minus 1 is equal to 13, इट्स वेरी सिंपल, जाएगा इधर 7x is equal to 13 plus 1, 7x equal to 14, therefore x is equal to 14 upon 7, 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, x is equal to, that means B has one element which is 2, you get second. Set A contain only one element which is 2 and B contain only one element which is 2, मतलब both sets having same element, therefore both are equal sets from first and second, from first and second we get A and B are equal set, A and B are equal set, therefore A is equal to B, ऐसा लिख सकते हैं, therefore A is equal to B. Now see the third question. What is the third question? Third question, which of the following are empty sets, empty मतलब खाली, कौन सा सेट्स एम्प्टी है कौन सा नहीं है। तो फर्स्ट वन सोल्यूशन, फर्स्ट का सोल्यूशन, व्हाट इज गिवन फर्स्ट इज गिवन ए such that A is a natural number smaller than 0, जल्दी बोलो फटाफट, क्या आएगा, x such that A is a natural number smaller than 0, natural number starting from 1 not a less than 0, बराबर, एक भी नहीं है, मतलब क्या हो गया है, दिस इज एम्प्टी, और राइट, देयर इज नो नेचुरल नंबर लेस देन 0, therefore A is empty set, A is empty set. लिख सकते हो रीजन यहाँ पे, बिकॉज देयर इज नो नेचुरल नंबर less than 0, therefore A is empty set, A is an empty set, B second one is given B x square is equal to 0, right, therefore
एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0, सॉल्व करना पड़ेगा। क्या हो जाएगा, एक्स इक्वल टू 0, टेकिंग स्क्वायर रूट, तो मतलब बी में एक एलिमेंट हो गया, बी इज इक्वल टू 0, बी हैज़ वन एलिमेंट, देयरफॉर बी इज नॉट 0 आया, इसके अंदर एक एलिमेंट आया, उसके अंदर एक भी नहीं आया, इसलिए एम्प्टी, इसके अंदर एक एलिमेंट आया इसलिए नॉट अ एम्प्टी सेट, मतलब सिंगलटन सेट बोल सकते हो इसको, या फिर नॉट अ एम्प्टी सेट। बी इज नॉट एन एम्प्टी सेट। थर्ड वन, what is given, c x 5x minus 2 is equal to 0 and x belongs to n, मतलब x का जो वैल्यू मिलना चाहिए वो क्या मिलना चाहिए, नेचुरल, मतलब पॉजिटिव नंबर मिलना चाहिए। सॉल्व करते हैं, 5x minus 2 is equal to 0, therefore 5x equal to 2 ट्रांसफर को इधर जाए क्या होगा, +2, therefore x इज इक्वल टू 2/5, x का वैल्यू कितना आ गया, 2/5, 2/5 नॉट अ नेचुरल नंबर, सिंस 2/5 इज नॉट नेचुरल नंबर, therefore what, c is equal to empty set, c is an empty set. Understood students? Question number 1, 2 and 3, and last one is given what, last question, fourth one, write the reason which of the following sets are finite or infinite. Write with reasons which of the following sets are finite or infinite, राइट। फाइनाइट और इनफाइनाइट बताने का, फाइनाइट मतलब काउंटेबल, इनफाइनाइट मतलब अनकाउंटेबल। क्या होगा फर्स्ट वन, ए में क्या दिया हुआ है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इट्स वेरी सिंपल, 1 to 9 नंबर है, काउंटेबल है मतलब क्या हो गया, ए इज फाइनाइट नंबर, ए इज फाइनाइट सेट। एंड रीजन क्या डालोगे, द नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए आर काउंटेबल, आर लिमिटेड लिखो या काउंटेबल लिखो, आर लिमिटेड लिखो, लिमिटेड एंड लिख सकते हो, एंड कैन बी काउंटेड, therefore A is finite set। सेकेंड वन में क्या होगा, B डॉट -4 -3 -2, राइट। क्या होएगा ये, इसके पहले ढेर सारा नंबर है लेकिन ख़त्म हो जा रहा है, -2 पे ख़त्म हो रहा है, -2 -3 -4 ले से कहाँ तक जाएगा, बहुत आगे तक जाएगा, मतलब अनकाउंटेबल है। क्या है, अनकाउंटेबल है, तो क्या लिखोगे, द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी आर अनलिमिटेड and uncountable,
therefore B is infinite set. Third one, the number of students what is third? The number of students in 1 minute चेक करता हूँ क्वेश्चन क्या है. C, what is C? C is set of students of class 9 from your school. तो क्या आएगा C में बोलो. सेट ऑफ स्टूडेंट्स क्लास 9 फ्रॉम योर स्कूल, बराबर. तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कैन बी लिमिटेड और अनलिमिटेड. तो आंसर क्या लिखोगे, द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन स्कूल is limited and can be counted, बराबर. therefore set C is finite, right. Fourth one, what is the fourth one? Is very simple. आप उसको करोगे, सेट ऑफ पीपल फ्रॉम योर विलेज, तुम्हारे विलेज के लोग फाइनाइट होगा, काउंट कर सकते हो. सेट ऑफ होल नंबर्स इज ऑलवेज इनफाइनाइट. सेट ऑफ रेशनल नंबर इज ऑलवेज इनफाइनाइट. 4th, 5th एंड 6 एंड 7 आप खुद ही करो, मैं बता दे रहा हूँ, ध्यान से सुन लो. क्या क्या दिया हुआ है 4th में, सेट ऑफ पीपल फ्रॉम योर विलेज, काउंटेबल है, तुम्हारे गांव के सभी लोग को काउंट कर सकते हो, देयरफॉर क्या हो जाएगा वो, फाइनाइट सेट. सेट ऑफ ऑपरेटर्स इन लेबोरेटरी में जो ऑपरेटर्स है, लैब में जब जाओगे आप तो उसमें ऑपरेटर्स रखा रहता है साइंस के लिए, तो काउंटेबल है कि नहीं, ढेर सारा रखा रहता है, क्या काउंटेबल रहता है, लिमिटेड रहता है, इसलिए क्या हो गया, फाइनाइट. सेट ऑफ होल नंबर्स इज अनकाउंटेबल, देयरफॉर इट इज इनफाइनाइट. व्हाट, इट इज इनफाइनाइट. सेट ऑफ रेशनल नंबर, इट इज इनफाइनाइट, राइट. एक चारों क्वेश्चन आप खुद लिखो, ठीक है. तब मैं नेक्स्ट लेक्चर लूँगा कल, और